Anyhow, I'll just go in a brief idea today. Okay, once again, I'll just repeat all of them in a very short and within 1 or 2 minutes only. Similarly, the words such as like, as, so as, when are used to show the comparison is called a simile. Metaphor. It's an implied simile, means you are indirectly calling or trying to indicate someone to compare, yes, them between unlike objects. It's a kind of an implied simile itself. Okay, it's an metaphorical type of the sentence. Then further, in the next point, we studied about the personification also. In the personification, what we understand is when the non-living things are given the human actions, most of them are the actions only. Such qualities, when are transferred or are given to the non-living things, they are called to be personifications. Then next is apostrophe. I told three different type of things in the apostrophe. One, when a non-living thing or a living thing is talked or addressed in the poem, when you are talking with them in the sentence, okay, किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ हम बात कर रहे होते हैं, then it is said as apostrophe. Then second is somebody is dead, still you are talking with the person in such a way that the person is alive, then it is also again apostrophe. Then third is the person is alive but you can't see the person right at that moment, and you are talking or you are trying to say something or address someone, then it is apostrophe. Then we came in the next point with the alliteration. Simple and sober. When the alphabets or the sounds are repeated in the same sentence, it is said to be alliteration. But exceptional case is assonance. An exceptional case is about assonance. What is assonance? When the vowels are repeated. Repeating. Yes, when the vowels are repeated in the same sentence in the different words, then it is called as, yes, it is called as assonance. Then next is repetition. Directly the whole word itself is repeated, such as in the last sentence we studied that remember, no men are strange, no country is foreign. No, two times are used in the same sentence, then it is repetition. Tautology. It is a little bit tough to understand, but actually easy. It is actually easy, but if you are not knowing the exact synonym, अगर आपको समानार्थी शब्द नहीं पता चला ना, तो फिर वो टफ हो जाएगा. जैसे कि कल एक एग्जांपल दिया था, डर्ट एंड फिल्थ, दोनों का मीनिंग एक ही है. फ्रेंड एंड कॉमरेड. कभी कभी कंपेनियन ध्यान में आता है, लेकिन कभी कभी कुछ जन को कॉमरेड क्या होता है सर, तो फ्रेंड ही का मतलब कॉमरेड होता है. मतलब दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में अगर यूज होता है तो उसे टोटोलॉजी कहता है. देन वी जंप्ड ऑन द लास्ट पॉइंट, दैट इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस में एक चीज याद रखना, दिमाग में फिट रखना, अभी जो बोलने जा रहा हूं. दो ऑपोजिट वर्ड्स या दो से ज्यादा ऑपोजिट वर्ड्स एक ही सेंटेंस में अलग अलग जगह पर, ये सेंटेंस जो बोला ना मैंने लास्ट में, अलग अलग जगह पर, ओके, माई फ्रेंड इज ऑल्सो माई एनिमी. मेरा दोस्ती मेरा दुश्मन भी है, यानी कि जो दोस्ती निभा रहा है वो शायद मेरा दुश्मन भी, यस, हो सकता है. तो इस सेंटेंस में हमें करना कुछ नहीं है, वो सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकालना है. दो ऑपोजिट वर्ड यूज किए गए हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को एंटीथेसिस में गिना जाता है. एंड नाउ उसका ही भाई बहन, एंटीथेसिस का ही बिल्कुल छोटा भाई मान के चलो, बस इतना ही फर्क है. ऑक्सीमोरन नाम का जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, द नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन. व्हाट इज इट एग्जैक्टली? When, in a simple words, I am going to explain it. If I read the definition, if you see the definition, see, special form of antithesis where two contradictory terms are united to give the expression of a point. सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैं समझा देता हूं. दो विरुद्धार्थी शब्द आजू बाजू में, बिल्कुल आजू बाजू में, ओके, जैसे कि मैं ब्लैक बोलता हूं और उसके तुरंत बाद व्हाइट बोलता हूं. ब्लैक एंड व्हाइट बोला तो गड़बड़, ब्लैक व्हाइट बोला, फादर मदर बोला तो समझ में आ गया. बिग एंड स्मॉल, एंड डाल दिया बीच में तो गड़बड़. बिग स्मॉल थिंग्स, बीच में हाइफन मार्क देना है तो दे सकते हो. अब सर ऐसे सेंटेंस होते हैं क्या? होते ना. इसमें देखो क्या दिया है एग्जांपल.
एंड द क्लाइंबिंग मून ग्रोज स्मॉल। सर इसमें कहा दो अपोजिट वर्ड है ना, ग्रोज। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना, बड़ा होना, और उसके बाजू में क्या दिया है, स्मॉल मतलब छोटा हो जाना। तो दो ऑपोजिट टाइप के वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड ही होंगे ऐसा नहीं जरूरी है, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स बिल्कुल अगल बगल में यूज होते हैं, तो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। द पेशेंट इन द हॉस्पिटल वाज अ लिविंग डेड। अगेन आई रिपीट, द पेशेंट इन द हॉस्पिटल वाज अ लिविंग डेड। सर समझ नहीं आया सेंटेंस, मैं बताता हूं ना। उस हॉस्पिटल में जो पेशेंट था वो लिविंग मतलब जिंदा था, लेकिन डेड मतलब मरे हुए की जिंदगी जी रहा था। मतलब उसके हाथ पैर ऐसे टूट गए थे कि वो जिंदा होकर भी मरा हुआ था। दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीमोरन। दूसरा एग्जांपल, और एक एग्जांपल, डे नाइट आई फाइट फॉर माय फैमिली। अब मैं डे एंड नाइट लिखूं जरूर नहीं है, अब देखो मैं बीच में भी यूज कर सकता हूं। माय पेरेंट्स वर्क डे नाइट फॉर मी। करते हैं ना कभी कभी ऐसा यूज, डे नाइट एक साथ में, डे एंड नाइट बोलने की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें दो विरुद्धार्थी शब्द ओके बिल्कुल अगल बगल में है, देन इट इज ऑक्सीमोरन। मैंने एक से बढ़कर एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। फिर भी और एक एग्जांपल देता हूं, आपका मन शांत हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, आइसक्रीम की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा। लिसन द सेंटेंस वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपर्ली। लाइफ इज नथिंग बट द बिटर स्वीटनेस ऑफ, यस ध्यान देना, लाइफ इज नथिंग बट द बिटर स्वीटनेस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। सर बड़ा टफ नहीं लग रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। जिंदगी कुछ और नहीं होती है बल्कि कड़वाहट से और मीठे एक्सपीरियंसेस से भरी हुई इस चीज होती है। मतलब यहाँ पर देखो बिटर स्वीटनेस एक साथ में यूज किया मैंने, तो ऐसे चीजों को ऑक्सीमोरन कहते हैं। ओके, इफ एनी doubt is created, okay, try to have the conversation with me. Then next is irony. Irony, it's a very simple one, but understand it very properly all of you. Now what does irony means? अगर हम किसी व्यक्ति को ताना मारते ना, ताना, तो उस ताने को ही क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोल देता हूं तू तो बड़ा होशियार है यार, तो आप समझ जाते हैं मैं होशियार नहीं हूं सर, मुझे पता है आप मुझे जानबूझ के ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब मैं ताना मार रहा था, लेकिन मैं होशियार तो बोल रहा था आपको, फिर भी आपको तकलीफ हो रही थी, सर सॉरी सर ऐसा ऐसा करके, है ना। मतलब हमारे कभी कभी शब्द जो है ना, हम डेली आयरनिकल फॉर्म यूज करते हैं, पता है आपको, डेली, लगभग डेली, है ना। मम्मी ने जैसे ही करेले की सब्जी बनाई और ये बताया बहुत अच्छी लगती है बेटा, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, आपका जवाब पता है क्या था, हाँ मम्मा सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, सही बोला तूने। हंस हंस के बोलते हैं आप भी ताना मार रहे थे, मम्मी भी ताना मार रही थी। अब किसी को कुछ बोलना है तो पूछो प्लीज, आपका यस डाउट क्लियर कर लो। अगर इफ एनीबडी इज हैविंग आफ्टर द आयरनी, आयरनी मींस अगेन आई रिपीट, इट्स अ completely yes taunting type of the sentence. The real meaning is completely opposite of what is written in the sentence. Now next is very 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 attractive type of the sentence, epigram. सादा सिंपल होता है एपिग्राम, लेकिन उसमें ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सरप्राइज, सर एक मिनट सर वापस बोलो ना क्या बोला आपने। अगर मैं ऐसे बोल गया, फटाफट बोल गया, मान लो एग्जांपल ध्यान से सुना, वन टच कैन बोलो ना। alter, वन टच कैन alter ऑल द क्रिएटेड थिंग्स। मेरे एक सिर्फ किसी चीज को छूने से पूरी दुनिया बिखर के टूट जाएगी, ऐसे थोड़ी ना होगा सर। अगर मान लो मैंने आपको बाद में बताया कि मैंने पूरी दुनिया में सब जगह पे एटॉमिक बॉम्ब यस फिट करके रखे हैं और मेरे हाथ में रिमोट है, नाउ यू विल थिंक माई वन टच कैन alter ऑल क्रिएटेड थिंग्स। हाँ यार ऐसा तो हो सकता है, मे हैपन, है ना। तो दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। हेट, ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे ध्यान से सुनो ना, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूं, ध्यान से एपिग्राम क्या है इसमें। एक्चुअली इसमें अट्रैक्शन क्या है, सबसे पहली बात अट्रैक्शन इसकी ये है कि सर
ये आप कहना क्या चाहते हैं, चाइल्ड फादर कैसे हुआ, और वो भी एक मैन का। अब देखो, आज आप पढ़ रहे हो, आप मेरे लिए आज बच्चे हो। आज से जब, अगर भविष्य में, ओके, व्हेन यू विल बी 27, 28 और 24, वॉट एवर एज इट में बी, जितना जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, आप इसके बाद कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी शादी करा दी जाएगी, है ना। फिर आप अगले अगले ध्यान देना, एकदम मैं एकदम क्लियर कर देता हूं आपको, ये एपिग्राम एग्जैक्टली इतना आसान नहीं होता है समझने में, बड़ा कंफ्यूज करता है। फिर भविष्य में प्यारे प्यारे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, आपके कंधे तक आ गए, और मैं एकदम बुढ़ा हो गया 90, 94, 95 के एज का, और आप मुझे मिलने आए। और आप जब मिलने आए तो आप अपने बेटे को या बेटी को साथ में लेकर आए, और तब मैंने आपको ये बोला, दिस मैन was once my child, and now I will say the sentence, the child is the father of a man. ये बच्चा जो कभी मेरे पास पढ़ता था, आज पिता बन गया है किसी एक बड़े इंसान का। Now got it, all of you? Yes, sir. Now coming to the little bit tough concept of paradox. Paradox थोड़ा सा tough होता है, paradox थोड़ा सा tough होता है, so understand it very properly all of you. It's a self contra, सादी भाषा में बोलता हूँ, एंटीथेसिस सबसे बड़ा भाई है, ऑक्सीमोरन उसका सबसे छोटा भाई है, और उनकी एक प्यारी प्यारी बहन है जिसका नाम है पैराडॉक्स। अब ध्यान देना, मतलब तीनों में ऑपोजिट के जैसा कुछ होता है। एक में ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, एंटीथेसिस अलग अलग जगह पर होता है। एक में ऑपोजिट वर्ड होते हैं बिल्कुल आजू बाजू में, तो ऑक्सीमोरन। लेकिन पैराडॉक्स क्या करता है, बहन होने की वजह से ये ऑपोजिट वर्ड्स को छोड़ ही देती है। क्या करती है, ऑपोजिट आइडियाज को। अब ऑपोजिट आइडियाज क्या होते हैं, जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं, ओके, तो उसमें एक्चुअली में जो लिखा जाता है उसमें एक हिडन ट्रुथ होता है, उसमें एक छुपा हुआ सच होता है। जैसे कि अगर मैं ये बोल दूं आपको, द हैंडीकैप्ड वन द रेस, द हैंडीकैप वॉन द रेस, एक हैंडीकैप है जिसने अपनी रेस जीत ली। सर एक मिनट, मुझे डाउट है, सर आप बोल रहे कि हैंडीकैप है और आप बोल रहे कि वो रेस जीत गया। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि वो घोड़े पर बैठकर रेस जीत गया, मैंने ये भी नहीं बोला ना कि वो भागकर रेस जीत गया। मैंने शायद अपने सेंटेंस में कड़वी सच्चाई को यस छुपा के रखा था। कौन सी, वो अपनी जिंदगी की रेस जीत गया। दैट इज द ऑपोजिट आइडिया। तो ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि एब्सर्ड स्टेटमेंट होता है जिसमें एक हिडन ट्रुथ छुपा रहता है, एंड सच हिडन ट्रुथ इज नथिंग बट called as a let us take the sentence which is given in your book itself. A caged bird stands on the grave of dreams. एक बंदिस्त पंछी है, केज के अंदर बंद है, ओके, और वो किस कतार पर खड़ा है, he or that particular bird is stands on the grave of dreams. ड्रीम्स खत्म होने वाले हैं उसके, मर मिटने वाले हैं उसके ड्रीम्स, है ना, ऐसे वो कतार पर खड़ा है। कौन से ड्रीम सर, अब उसके ड्रीम्स है आजाद होने के, ये है उसका हिडन ट्रुथ। अब भले वो पंछी बंद है, कैद करके रखा गया है, लेकिन फिर भी आप उसके ड्रीम्स को कैद नहीं कर सकते। आप उसके आत्मा को कैद नहीं कर सकते, उसके शरीर को कैद करके रखा है, लेकिन उसका मन जो है वो तो आजाद है ना, वो ड्रीम्स तो देख सकता है ना, तो उसको आप कैद नहीं कर सकते। सिंपल, गॉट द पॉइंट। तो ऐसे जो हिडन ट्रुथ होते हैं, तो ऐसे हिडन ट्रुथ्स बहुत टफ होता है समझने में, पैराडॉक्स बहुत कम आता है। आपकी पोएम्स में तो है ही नहीं, लगभग कोई भी पोएम में नहीं, लेकिन बता के रखता हूं, काम में आएगा। ओके, बता के रखना मेरा काम है। ओके, सो एक ही चीज याद रखना, पैराडॉक्स में क्या याद रखना, कि ऐसा कोई वाक्य कि जिसके अंदर आइडिया जो दी होती है या जो सेंटेंस होता है उसका बिल्कुल अपोजिट आइडिया हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई सच्चाई छुपी हुई है। ओके, तो ऐसी सच्चाई को ढूंढना उस सेंटेंस में से हमारा काम होता है, जो हम पैराडॉक्स के फॉर्म में लिखते हैं। देन नेक्स्ट इज, ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, मेटोनिमी में एकदम सादा सिंपल है, एकदम क्लियर समझ लेना। अगर मैं आपको बोला कि राजा जिस पर बैठता है, वो जो थ्रोन होता है, थ्रोन, उसको थ्रोन बोलता है, राजगद्दी बोलते हैं उसको। राजा जो पहनता है
तो उसको मुकुट बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्राउन बोलते हैं। और अगर मैंने क्राउन को लेकर सेंटेंस बना दिया, द क्राउन वॉज, ओके, द क्राउन वॉज डिफीटेड इन द, यस, battlefield. The crown was defeated in the battlefield. अब इस सेंटेंस को सुनने के बाद सर, क्राउन वॉज डिफीटेड मतलब सर राजा ही डिफीट हुआ ना, आप यही कहना चाह, यही तो मतलब मैं राजा वर्ड नहीं यूज करता हूं, उसके बदले में उससे मिलती जुलती चीजें, ओके, अगर यूज कर रहा हूं सेंटेंस में। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया राजा का, ऐसे हजारों ने करोड़ों एग्जांपल है। अगर मैं साइंटिस्ट के बदले में एक्सपेरिमेंट्स बोलता हूं, ऑल द एक्सपेरिमेंट्स were lost, were completely damaged on that day, तो मैं समझ जाऊंगा कि एक्सपेरिमेंट्स तो कभी खोते नहीं है यार, एक्सपेरिमेंट्स कभी खोते नहीं है, कभी मिटते, यस, एक्सपेरिमेंट्स नहीं खो गए, उस दिन सब साइंटिस्ट इस दुनिया से चल बसे। मतलब अगर मैं समझ जाता हूं कि इसमें, ओके, किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में क्राउन के बदले में राजा ही था, एक्सपेरिमेंट्स के बदले में साइंटिस्ट थे, तो ऐसे सेंटेंसेस को मेटोनिमी कहते हैं। अब एक एग्जांपल जो दिया है यहाँ पर, ओके, पहले उसकी डेफिनेशन में यहाँ पर पढ़ता नहीं हूं जानबूझ के। एन एट्रीब्यूट और अ थिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर क्लोजली रिलेटेड टू इट। आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसलिए मैं पहले वो समझा देता हूँ, फिर इसको पढ़ता हूं मैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज को एट्रीब्यूट करते हैं मतलब उसको बताते हैं या किसी चीज को इंडिकेट करते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करती हो, जैसे राजा को रिप्रेजेंट करने वाली क्राउन थी या थ्रोन था, या साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला, यस, एक्सपेरिमेंट्स थे, या लैबोरेटरी बोल देता हूं मैं, है ना। आज के बाद सभी लैब्स हमेशा के लिए बंद हो गए, समझ गया मैं, सबके सब साइंटिस्ट गए, अब लैब ही नहीं खुलेगी तो साइंटिस्ट ही नहीं होगा ना, इसलिए तभी तो, यस, दैट टाइम इनटू से फ्रॉम द मेटोनिमी। अब इस सेंटेंस में देखो, beneath all uniforms a single body breathe। दुनिया में हर एक जो यूनिफॉर्म होता है, हर एक प्रकार के जो कपड़े लोग पहनते हैं, हर एक प्रकार के, कोई सादा सिंपल है, कोई बहुत अमीर है, कोई एक्स वाई जेड है ना, तो ऐसे प्रकार के जो, ओके, अगर हम कपड़े पहनकर, यस, जी रहे होते हैं, तो उसमें उन कपड़ों के बीच में कौन होता है, अ सिंगल बॉडी ब्रीद। अब सिंगल बॉडी मतलब कोई ना कोई उसके अंदर कोई आत्मा, मतलब आत्मा मतलब कोई इंसान तो होता है, लेकिन इंसान तो लिखा नहीं है सर इसमें, वही तो हमें समझना है। A single body breath means there is a single person in each and every uniform जो इस दुनिया में जी रहा है। मतलब मैं इंसान समझ जाता हूँ, जो किस वर्ड से पता चलता है, अ सिंगल बॉडी, तो उससे पता चलता है कि वो मेटोनिमी था। तो इसको भी, ये दोनों को समझना बहुत टफ होता है, पैराडॉक्स और मेटोनिमी को, ओके। इफ स्टिल you have not got it, please try to message or try to